Berarti punya bisa mau jalan, bisa kalau dia bukan yang
Good morning, all. Good morning, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So I have shared one PDF in your Google Classroom. So that is actually the book notes for the Conquer. I'll share in the Google Classroom also. So we will be doing. Conquer actually I can't find the soft copy of this book. So whatever is missing in the PPT or that we will make the scan of the PDF that I'm going to share with you. So you can save it for your reference. So this screen is visible. Yes, ma'am. So although we discussed these instructions like rotation and all, but इनका डिटेल में हमने उस टाइम पे नहीं किया था because आपके एग्जाम्स आ गए थे. So we will be doing some examples based on these stack all the whatever topics we have discussed. तो उनके कुछ additional examples हैं. So we are going to discuss in next 2-3 lectures. So first comes the rotation. So as we have discussed earlier also, rotation means it is a type of your logical operation. So it is a logical operation. And in the rotation, we further have four types. So RLC, this is the rotate the accumulator left. Then RAL, ये भी लेफ्ट के लिए है बट थ्रू कैरी फ्लैग. ठीक है. तो RAL और इसमें क्या डिफरेंस है कि दिस विल बी सिंपल रोटेशन एंड दिस विल बी थ्रू दी कैरी फ्लैग. लाइक दिस. सेम वे अगर हमने राइट की तरफ रोटेट करना है सो रोटेट एंड ऑल्सो ऑलवेज द रोटेशन इंस्ट्रक्शन इज इन द एक्यूमुलेटर ऑन. तो ये किसी और रजिस्टर पे हम नहीं लगा पाएंगे. इट विल बी ऑलवेज. तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो आपका डेस्टिनेशन और सोर्स है दैट इज एक्यूमुलेटर ऑन. आपका जो है सोर्स भी एक्यूमुलेटर रहेगा और आपका डेस्टिनेशन जो है वो भी एक्यूमुलेटर ही रहेगा. सेम वे rotate the accumulator right and rotate the accumulator right through the. So let's check the examples. First comes the RLC. So this is rotate the accumulator left. So in this each bit is shifted to the adjacent left position. तो जो भी आपके कंटेंट्स होंगे we are going to shift by one bit towards the left. तो आपकी ये वाली जो बिट होगी D7 बिट वो यहाँ पे आ जाएगी एंड ये सारी की सारी आपकी रोटेट करती जाएंगी बाय वन. कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द बिट D7. अब इसमें आप कैरी को रोटेशन के लिए यूज नहीं कर रहे बट ये जो आपकी बिट होगी दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर कैरी फ्लैग ऑल्सो.
मीन्स ये बिट आपकी वापस यहाँ पे आ जाएगी, बट ये एट द सेम टाइम कैरी फ्लैग को मॉडिफाई करेगी, बट इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ रोटेशन। लेट्स चेक दिस। So suppose assume the accumulator contents are AAH. AAH आपके accumulator में है already. So accumulator is having AAH. AA means 10. A is 10. So 10 means 1 0 1 0 1 0 1 0 and bind. And carry flag is 0. और आपका carry flag का initial status क्या, that is 0. Now check the accumulator content after the execution of RLC instruction twice. Let's check. This is our initial accumulator contents before the instruction 10101010. So as I told you, ये bit आपकी इधर आ जाएगी. This will be shifted over here. At the same time, it is going to take this carry flag, and rest all the bits they are going to shift by 1. तो ये सारी की सारी ऐसे shift होती जाएंगी. तो हुआ क्या, ये 0101 यहाँ पे आ जाएगा, 0101 दिस 01001 यहाँ पे आया, और ये वाला 1 आपका LSB बिट बन जाएगा. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कैरी फ्लैग आपका 0 था, बट नाउ हियर कैरी फ्लैग विल बी इक्वल टू 1. दिस मीन्स नाउ द कंटेंट इज व्हाट इट इज, it will be 5 पहले AA था, 0101 is 5, 0101 is 5, so this means new content is 55H. सेम वे फिर दोबारा अगर आप इसको रोटेट करोगे टुवर्ड्स द लेफ्ट, अगेन अगर आपने RLC कमांड दी है तो फिर आपकी ये 1010 यहाँ पे आ जाएगी, 101 it is here, this bit it will come at the end, and आपका कैरी फ्लैग जो है this will be 0. So again 1010 it is AA. So this is how it is going to affect, that is your RLC. Second है rotate the accumulator left through the carry flag. अगर through carry flag होगा, in that case ये है rotate the accumulator left but through the carry flag. तो इसमें आपकी ये वाली जो बिट है वो आपके कैरी फ्लैग में जाएगी, और कैरी फ्लैग में जो बिट है वो आपकी LSB बिट बन जाएगी. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली जो रोटेशन है दैट इज थ्रू दी 9 बिट्स. 8 बिट्स तो ये हो गई और 9th बिट आपकी ये हो गई. तो इसमें अगर आप 1010 सेम, अगर आपके पास AAH है 1010 एंड 1010 और आपने इसके बाद RAL इंस्ट्रक्शन लगाई, तो दिस विल बी 0101 010. ये बिट आपकी कैरी में गई तो कैरी फ्लैग आपका 1 हो गया, और यहाँ से जो था वो आपका इधर आ गया. तो अगेन अब आपका ये कैरी, ये 1 जो है इधर नहीं आया, कैरी फ्लैग का इधर आ गया, सो इट इज 0 now. So 0101 is 5, 0100 is 4. तो वहां पे आपका आ रहा था AA and 55H, बट यहाँ पे क्या आ रहा है AA and 54H. सेम वे नेक्स्ट टाइम रोटेट करोगे फिर क्या होगा, इट विल बी 1010 ये आ गया, 100 यहाँ से आया, ये बिट आपकी कैरी में चली जाएगी 0, और कैरी वाली यहाँ पे आ जाएगी. सो इट विल बी 1010 is A and 1001 is 9. So it is A9H. So this is how we can tell the difference between your RLC instruction versus the RAL. Same way towards the right होगा, उसमें आप सभी बिट्स को राइट की तरफ रोटेट करोगे. ये वाली बिट अगर आपकी थ्रू कैरी है तो कैरी में जाएगी और कैरी वाली MSB बन जाएगी. ठीक है, और वहां पे क्या होगा, ये इधर आ जाएगी एंड दिस विल बी गोइंग. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन RAL एंड. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर. एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट अगेन? एनी डाउट्स? No, ma'am. Okay. Now, next example is for RRC and RAR. Same way, अब आपके पास जो है कंटेंट है 81H और कैरी फ्लैग है आपका 0. So let's see again.
तो क्यूमुलेटर में है आपके पास 81H. 81H means it will be 1 0 0 0, 1 will be 0 0 0 1. तो ये हमने लिख लिया 1 0 0 0 0 0 0 1. इनिशियली हमें कैरी 0 गिवन है, तो अब इसमें क्या होगा, व्हेन वी आर यूजिंग दिस RRC, तो ये बिट जो है आपकी वो आपकी कैरी फ्लैग में भी जाएगी और ये आपकी MSB बिट भी बन जाएगी. तो दिस वन इट इज गोइंग टू इफेक्ट दिस कैरी फ्लैग, तो ये 1 यहाँ पे आ गया एंड सेम वे ये 1 आपका इधर भी आ जाएगा. बाकी सारी बिट्स को रोटेट कर दिया. तो दिस 1 0 0 0 1 0 0 यहाँ पे आ गया, रोटेट कर दिया बाय 1 बिट टुवर्ड्स द राइट. देन दिस विल बी 0 0 0, इट विल कम ओवर हियर. ये बिट आपकी कैरी में गई और आपके यहाँ पे आ गई. सो दिस इज व्हाट नाउ 1 1 0 0 is C and 0 0 0 is 0. So this becomes C0H. This is 81H. नेक्स्ट टाइम फिर रोटेट करोगे, अब क्या होगा, ये बिट आपकी कैरी में गई, सो कैरी इज 0 और इट विल कम ओवर हियर आल्सो. सॉरी, दिस इज RAR इंस्ट्रक्शन. सेम पे इन्होंने RAR लगा दी. तो RAR में क्या होगा, ये बिट आपकी कैरी में चली जाएगी और कैरी वाला यहाँ पे आ जाएगा. तो कैरी में 0 था वो यहाँ पे आ गया. ये सारी बिट्स शिफ्ट हो गई 1 0 0 0. दिस विल बी 0 0 0 एंड दिस वन इट इज गोइंग टू इफेक्ट कैरी. तो इसमें अगर पहले 81H था, नाउ इट इज 40H. तो यहाँ पे 81H का C0 बना और यहाँ पे 81 का 40H बना. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर RAL and RC. Please check if it is fine. Easy है. So I hope it is clear to all of you. Is it clear है? Yes, ma'am. So next comes the program now. This is little bit complicated. So ध्यान से देखो इसको. We are going to discuss in detail. We have to check the sign with rotating. हुआ क्या? A set of 10 current readings is stored in memory location starting at exit 60H. The readings are expected to be positive. ठीक है, तो आपके पास सपोज कोई टेम्परेचर की रेटिंग्स है, कोई भी करंट रीडिंग्स है कोई 10. उसमें से हमने क्या करना है कि जो भी आपकी नेगेटिव रीडिंग होगी कोई, उसको हमने रिजेक्ट कर देना, उसको हमने नहीं करना. और जितनी भी पॉजिटिव रीडिंग होंगी उनको सिर्फ आपने जो है ऐड करना है. तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ 10 करंट रीडिंग इज स्टोर्ड इन लोकेशन 60H ऑनवर्ड्स. तो यहाँ 60H ऑनवर्ड्स 10 मेमोरी लोकेशन पे आपका कुछ डाटा पड़ा. To check each reading to determine whether it is positive or negative, reject all the negative readings, add all the positive readings, और उसके बाद output FFH to port 1 at any time when the sum exceeds 8 bits to indicate the overload. Otherwise, display the sum. If no output port is available, go to step 5. Store this in memory location this when the sum exceeds 8 bits. Otherwise, go to sum. अब ये हमने कुछ उन्होंने दिया है. We have to do this. तो एक्चुअली हमारे पास ये डाटा है, ये आपके पास टोटल 10 नंबर्स हैं. ठीक है, हमने हर नंबर को पहले चेक करना है. इसमें अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो डाटा है दैट इज अ साइंड बिट. मींस MSB बिट जो होगी इसकी दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट द साइन. अगर तो वो 1 होती है वी एज्यूम इट इज अ नेगेटिव एंड इफ इट इज 0 वी एज्यूम इट इज अ पॉजिटिव. तो जिस भी नंबर की ये बिट आपकी 1 होगी हमने उसको इंक्लूड नहीं करना. वी हैव टू सिंपली रिजेक्ट दैट. ठीक है, बाकी सबको हमने ऐड करना. तो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो चेकिंग द साइन विद रोटेशन. तो अब हम करेंगे क्या, आपके पास जो भी बिट होगी, ये बिट होगी, इसको हम रोटेट करके हम कैरी फ्लैग में ले जाएंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट कि कैरी फ्लैग आपका 1 है या 0 है, वी आर गोइंग टू reject it or we are going to include it in the count. So now this is the flow chart. First let's discuss that when we are going to check these instructions कि ये क्या.
सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट क्लियर दी सम रजिस्टर। सम रजिस्टर, जिस भी रजिस्टर में हमें सम को सेव करना है हम उसको इनिशियली क्लियर कर लेते हैं सो दैट कोई गार्बेज वैल्यू ना हो। उसके बाद आप काउंटर सेट करोगे बिकॉज आपने रिपीटेड एडिशन करनी है, ठीक है। रिपीटेड एडिशन में हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 10 है, तो हमने ये काउंटर 10 के लिए सेट करना है, सेटअप मेमोरी पॉइंटर। और हमारा ये जो नंबर्स हैं वो x60 ऑनवर्ड स्टोर है, ये 10 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंटर लगा देंगे, सेटअप मेमोरी पॉइंटर, दिस इज ब्लॉक 1। फिर हम क्या करेंगे, इस डाटा बाइट को मेमोरी से उठा के गेट द डाटा बाइट, उसको इंटरनल ले आएंगे एक्यूमुलेटर में। फिर उसका साइन चेक करो, चेक फॉर साइन। साइन हम कैसे चेक करेंगे, उसको रोटेट करवाएंगे एक बिट, जो ये आपकी एमएसबी बिट होगी उसको हम ले जाएंगे कैरी फ्लैग में। अगर तो वो आपका 1 हुआ, इज इट नेगेटिव, इफ द नंबर इज नेगेटिव, इफ इट इज यस, तो व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली वी हैव टू इग्नोर इट। अगर आपका नंबर नेगेटिव नहीं है तो आपने रिस्टोर करना है बाइट को, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बिट को रोटेट कर दिया, आपने उसकी वैल्यू सपोज 3A या जैसे हमने अभी लिया AA थी, तो AA से जब हमने रोटेट किया तो वो 55 बन गई थी, है ना। बट हमें ऐड तो AA को करना, तो वापस आप उसको रोटेट करोगे टुवर्ड्स दी लेफ्ट और राइट, जो भी आपने पहले यूज किया। अगर पहले आपने RAL यूज की है तो आप वापस राइट की तरफ रिस्टोर करोगे, अगर पहले आपने रोटेट टू द राइट किया तो लेफ्ट की तरफ। सो यू हैव टू रीस्टोर दी राइट। फिर आप सम करोगे, सम में ओल्ड सम जो भी आपका वैल्यूज है आप उसको सेव करते जा रहे हो, तो ओल्ड सम फर्स्ट केस में तो 0 ही होगा बिकॉज आपने उसको क्लियर कर दिया और डाटा बाइट आप उसमें ऐड कर दिया। सम आप करते रहोगे जिस भी रजिस्टर में आप सेव करोगे। सम करने के बाद अगेन उन्होंने कंडीशन लगा दी है, इज द सम ग्रेटर देन एफएफएच। वो कहते हैं अगर आपका ओवरफ्लो जितने भी नंबर्स आपने ऐड किए अगर वो एफएफएच से ज्यादा है, if it is yes we have to do something, if it is no then you have to save the sum। करते रहना है जब तक आपकी ये वैल्यू एफएफएच नहीं होती। हर बार आपने क्या करना है, पॉइंटर जो था पहले अगर आपका 2060 पे था तो नेक्स्ट टाइम आपने उसको 61 पे करना है, तो आप पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे बाय 1 और काउंटर की वैल्यू 10 नंबर से अब 9 रह गए तो काउंटर को डिक्रीमेंट करोगे बाय 1। पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड काउंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। कब तक करना है ये सम आपको, दिस सम जब तक आपकी काउंटर की वैल्यू 0 है। इज द काउंटर 0, इफ इट इज नो यू आर गोइंग टू रिपीट दिस होल थिंग, इफ इट इज यस यू हैव टू सेव। बट अगर आपका सम एफएफएच से ज्यादा है उस केस में आपको क्या करना है, यू हैव टू डू समथिंग सम अदर थिंग, वो आपके बी ब्लॉक में उन्होंने लिखा है। लेट्स चेक बी में क्या है, बी में आपको क्या करना है, यू हैव टू आउटपुट एफएफएच। उस केस में सिंपली आपने मतलब एफएफएच से ज्यादा अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो आपने कहा कि ये मैक्सिमम लिमिट है, सिंपली आपने उसको एक आउटपुट पोर्ट पे डिस्प्ले करवा देना है एंड स्टॉप। तो दिस इज द एक्चुअली एल्गोरिथम प्रोसेस। प्लीज चेक दिस, मैं इसको जरा छोटा कर देती हूँ so that you can check this। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम अगर फाइनल कैरी जनरेट होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा ना मैम? तो फाइनल मैम अगर जो कैरी जनरेट हुआ है वो 1 है हाँ तो तब रिजल्ट पॉजिटिव होगा ना मैम? हाँ बिल्कुल, वो हम करेंगे अभी, मैं डिस्कस करने लगे कि हाँ आपने उसको कैसे रिजेक्ट करना है। पहले आप जस्ट फ्लो में अगर कहीं आपको एल्गोरिथम में कुछ डाउट है यू कैन आस्क, तो भी हम लॉजिक डिस्कस करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू रिजेक्ट, साइन हम कैसे चेक करेंगे। लॉजिक क्लियर है व्हाट वी आर गोइंग टू डू? यस मैम। Should I repeat once again what we are going to do in this? Let's again read this thing. Set of 10 current readings आपके XF60H पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। चेक ईच रीडिंग, फर्स्ट आपने चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जितनी भी नेगेटिव रीडिंग होगी उनको रिजेक्ट कर देना है, सिर्फ पॉजिटिव वालों को ऐड करना है। आउटपुट एफएफएच टू पोर्ट 1 एट एनी टाइम व्हेन द सम एक्सीड्स 8 बिट। जैसे ही आपका सम अगर जितने भी आपने नंबर्स ऐड किए अगर वो एफएफएच से ज्यादा हो रहा है
मतलब आप जो है 127 से ज़्यादा नहीं ले रहे हो, तो आपने सिंपली जाके उसको पोर्ट 1 पे डिस्प्ले कर देना है। अदरवाइज आपने उसको स्टोर करना है 70H पे, स्टोर FFH इन मेमोरी लोकेशन, अदरवाइज स्टोर द सम, अदरवाइज वी हैव टू डू दिस थिंग। ये आपके नंबर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने ये करना है। नाउ लेट्स चेक दिस कोड ऑन दिस साइड, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले क्लियर द सम रजिस्टर, तो आपने क्या किया, बी में आप अपने सम को सेव कर रहे हो, तो आपने इसको क्लियर कर दिया MVI 00। तो मूव इमीडिएट टू B 00H, so B is equal to 00H over here. मूव इमीडिएट टू C0AH, ये क्या है आपका दिस काउंटर। काउंटर के लिए आपने क्या लिया, C रजिस्टर लिया, यहाँ पे आपने B रजिस्टर लिया, तो C is equal to 0AH। 0A means 10 because 10 नंबर है। अब यहाँ पे 10H मत लिख देना, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज 10H का क्या मतलब हो जाएगा, इट विल बी 16 नंबर। तो कई बार आप ध्यान नहीं देते हो, 10 नंबर्स है, 10 के बाद बाई चांस आदत होती है H लिखने की हर जगह, तो H लिख देते हो, तो ये गलत हो जाएगा, आपका 16 बार काउंटर बनेगा। तो यू हैव टू टेक C इज इक्वल टू 0A। ये दोनों नंबर्स अपने कर दिए, ये कर दिया हमने। सेटअप मेमोरी पॉइंटर, अब हमारी मेमोरी कहाँ पे है, XX60H ऑनवर्ड्स, तो हम उसके लिए HL रजिस्टर, बिकॉज हमें M यूज करना है, तो हम उसको HL पेयर में सेव कर लेंगे। तो HL में आपके पास वैल्यू आ गई XX60H। इट कैन बी 0060, इट कैन बी 0160, तो ये डोंट केयर कंडीशन है, बट वी नो कि ये आपका 60 है, तो वो आपका कंपाइलर जो भी अवेलेबल मेमोरी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे XX की जगह वो वैल्यूज पुट करेगा, बट हमें ये गिवन है तो वी आर गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन ऑफ HL में आ गया 0060H। गेट द डाटा टाइप, move A comma M, so this means move the content of this memory location into the accumulator। accumulator में ले आए, फर्स्ट नंबर कौन सा हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज 28। 28H, 28 means it is 0010 अब ये MSB बिट यहाँ पे 0 है, दिस मीन्स इट इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। अगर ये बिट आपकी 1 होती, दिस मीन्स इट इज अ नेगेटिव नंबर, फिर आपने इसको रिजेक्ट करना। सो मूव A कॉमा M एक्यूमुलेटर में लेके आए और उसको आपने किया RAL। RAL means rotate the contents of the accumulator to the left through the carry flag। तो ये बिट आपकी जो है वो चली जाएगी आपके 0010 ये सारे आपके शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट और ये आपके कैरी फ्लैग में चली जाएगी। तो कैरी फ्लैग आपका क्या हो गया 0, जब आपने RAL किया फर्स्ट टाइम। जंप इफ कैरी टू रिजेक्ट, अगर कैरी फ्लैग आपका 1 है, सो JC मीन जंप इफ कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1 टू द रिजेक्ट पॉइंटर। रिजेक्ट आपने कहाँ पे किया है, सिंपली आपने उसमें क्या करना है, नेक्स्ट लोकेशन पे चले जाना और डिक्रीमेंट कर देना आपके काउंटर की वैल्यू। दिस मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू ऐड इट इन दिस लूप, सिंपली रिजेक्ट आपने कर देना। तो ये आपका रिजेक्ट क्या है, लेबल जंप इज कैरी टू रिजेक्ट, बट इस केस में तो नहीं है, तो आपका क्या आएगा, वापस हम यहाँ पे आए, बट बिकॉज आपने इस बिट को, इस बाइट को मॉडिफाई कर दिया था, तो वापस आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा टुवर्ड्स दी राइट टू रिस्टोर दी ओरिजिनल। तो वापस उसको RAR कर दोगे, यहाँ पे आपने RAL किया था, वापस उसको राइट की तरफ रोटेट कर दोगे, सो दैट यू गेट बैक दी ओरिजिनल दिस 28H। add B, add B means add the content of accumulator with the B, add B कर दिया। jump if carry, अगर आपका यहाँ पे आफ्टर एडिशन ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो तभी करेगा अगर आपकी 8 बिट से ज़्यादा जाके आपका कैरी फ्लैग जो है आपका मॉडिफाई हो रहा है। जंप इज कैरी टू ओवरलोड, दिस मीन्स कि आपकी वैल्यू जो है ओवरफ्लो हो रही है FF से ज़्यादा, तो आप ओवरलोड पे जाओगे। ओवरलोड में आपने क्या किया है, ओवरलोड में सिंपली आपने A में FFH लेना और उसको पोर्ट 1 पे सेंड कर देना।
बट अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो सम है अभी ओवरफ्लो नहीं किया, इन दैट केस हम पे कैरी टू ओवरलोड, अदरवाइज इट विल कम टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फिर आपके पास मूव बी कॉमा ए, जो भी आपका सम, बिकॉज सम किस में आता है, हमेशा एक्यूमुलेटर में, और सेव आपको उसको किस में करना है, बी में। तो आप ए के जो भी कंटेंट होंगे आप बी में उसको सेव कर दो, मीन्स बी में आप सम को सेव कर दो। नेक्स्ट नंबर लेने के लिए INXH, तो x में पहले था 2060, नाउ इट विल बी 2061। डिक्रीमेंट कर दो कैरी आपका काउंटर को, तो c की वैल्यू पहले 10 थी, नाउ इट विल बी 9। ये कब तक चलेगा, जंप इफ नॉट 0, जब तक ये आपकी c की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, जंप इफ नॉट 0 टू नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट नंबर को ए में लेके जाएगा, फिर उसका साइन चेक करेगा, नेगेटिव होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा, अदरवाइज उसको सेव कर लेगा, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू। और एट द एंड क्या होगा, जो भी आपकी बी में वैल्यू है, जो सम है, बिकॉज आपने उसको पोर्ट पे सेंड करना है, तो पहले आप उसको ए में लेके जाओगे, वहां से आउट कर दोगे पोर्ट 1 पे एंड पोर्ट। So this is the complete code. Please check this code again. अगर आपको स्क्रीन पे कम छोटा दिख रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप से भी इसको जूम करके देख सकते हो, बस मेरे इसमें फिर वो पूरी स्क्रीन पे नहीं आता। हाँ जी, एनी डाउट है दिस? मैम ये ओवरलोड कैसे पता चला कैरी से? ओवरलोड ये हुआ कि आपने दो नंबर्स को ऐड किया, सपोज फर्स्ट नंबर है आपका 01 है, सेकंड नंबर है 0, है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 03 होगा, तो आपका यहाँ पे कैरी में कुछ नहीं आएगा। बट अगर आपका नंबर एक है, FF है, सेकंड नंबर, उसमें आप 03 ऐड करोगे तो उस केस में यहाँ पे आपका कैरी जनरेट होगा, ओवरफ्लो कर जाएगा ना रिजल्ट आपका। तो उस केस में फिर आपका कैरी फ्लैग यहाँ पे जो है वो इट विल बी सेट व्हेनेवर द टू नंबर का जो सम है वो ग्रेटर देन होगा, तो कैरी फ्लैग आपका जनरेट होगा। एडिशनल बिट आ जाएगी ना यहाँ पे, वो एडिशनल बिट किस में सेव होती है, कैरी फ्लैग में। तो अगर कैरी फ्लैग आपका जनरेट हुआ, दिस मीन्स रिजल्ट ओवरफ्लो हो रहा है, तो सिंपली आपने क्या करना है, वहाँ पे FFH करके डिस्प्ले करना है दिस वन। Is the sum greater than FFH? To simply display it on the output. Is it clear? Yes ma'am. And any doubt to any other? So I hope you can do this program. तो ये आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है कोड। तो यहाँ पे अगर हम देखो तो आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, 28 जो है पॉजिटिव नंबर है, तो इसको वो ऐड करेगा। D8, D विल बी व्हाट, D क्या होता है आपका, A is 10, B is 11, 12, 13, so 13 means it will be, पैटर्न क्या बनेगा, 1 1 0 1, ये बनेगा। ये बिट आपकी 1 है, जब आप इसको कैरी में लेके जाओगे तो ये इसको रिजेक्ट कर देगा, सो दिस नंबर इट विल बी रिजेक्टेड। तो जब ये नंबर्स को ऐड करेगा, सिर्फ जो है आपकी पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेगा, मीन्स इसको जस्ट इसको ऐड करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा। C2 क्या होगा, C विल बी, इट इज 12, सो 12 इज अगेन 1 0 1 0, ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। 21 को ऐड करेगा, 24 को ऐड करेगा, 30 को ऐड करेगा, 2F को ऐड करेगा, 19 को, F2 को, और 9 विल बी 1 0 अगेन, इसको भी रिजेक्ट कर देगा। इन सभी नंबर्स को ऐड करेगा, इनको रिजेक्ट कर देगा नेगेटिव वालों को, एंड इन दिस रिटर्न देगा। अगर आपको 10 की जगह 20 नंबर्स को आना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू चेंज दिस काउंट वैल्यू, बाकी सारा का सारा आपका सेम है। So I hope this is fine. बस एक ध्यान रखना है, जब भी आपने आउटपुट पोर्ट पे सेंड करना है तो डाटा हैज टू बी इन द क्यूमुलेटर। क्यूमुलेटर से सिर्फ आप आउटपुट
जो इन और आउट आपके इंस्ट्रक्शंस है उनको आप सिर्फ एक्यूमुलेटर के साथ लगा सकते हो। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि बी से आप आउट कर दो, तो पहले जो भी आपका सम है उसको ए पे लेके जाओ फिर आउट वन। यहाँ पे बिकॉज आप सीधा ही यहाँ पे आ गए थे तो वी डोंट नो कि आउटपुट पोर्ट पे क्या सेंड करना, तो पहले आपने ए में एफएफएच सेव कर लिया, फिर आपने उसको आउटपुट पोर्ट पे डिस्प्ले किया। सो दिस इज अगेन कंप्लीट कोड जहाँ पे इन्होंने हर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कमेंट्स भी लिखे होंगे, जैसे मूव बी आई 00h के क्लियर बी टू सेव सम, MVI C0h मीन सेटअप रजिस्टर C एज अ काउंटर। तो सेम कोड is given with all the details. You can check. Next comes the compare instruction, logical operations of compare. Compare में we have two instructions. One is CMP, another is CPI. CMP is compare with the accumulator and CPI means compare immediate with the value with the accumulator. Depending on कि आपने नंबर कैसे लिए दिया, ये ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं बट प्रोग्राम हमने देखा है। As I told you earlier also, compare में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, we are doing the subtraction. अगर तो accumulator के कंटेंट आपके जो हैं if it is less than जो भी आपका रजिस्टर या मेमोरी में डाटा है, तो उस केस में जब आप इसको माइनस करोगे तो बोरो आएगा। बोरो मीन्स कैरी फ्लैग विल बी सेट, दिस कैरी फ्लैग इज सेट एंड जीरो फ्लैग इज रीसेट, जीरो को कुछ नहीं है। इफ द टू नंबर्स आर इक्वल, तो जब आप दोनों को माइनस करोगे तो रिजल्ट विल बी जीरो, सो जीरो फ्लैग इज सेट एंड कैरी फ्लैग इज रीसेट, कैरी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इफ ए इज ग्रेटर देन रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, इन दैट केस कैरी को भी कुछ नहीं होगा, सो कैरी विल बी रीसेट एंड जीरो फ्लैग इज रीसेट। तो एक्चुअल में कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में हम ये तीन वैल्यूज जो है वो यूज करते हैं, हम जीरो फ्लैग चेक करते हैं और कैरी फ्लैग चेक करते हैं। वन अनदर थिंग, कंपेयर जो है वो कंटेंट को मॉडिफाई नहीं करता। ऐसा नहीं है कि जब आपने माइनस किया तो उस रिजल्ट को ए में सेव करेगा, सो नो कंटेंट्स आर मॉडिफाइड। However, all the remaining flags जो आपके carry are zero है, they will be modified, and all the remaining flags are affected according to the result of the observation. तो flags modify होंगे, but content modify नहीं होगा। ना तो A का modify होगा, ना ही register या M। इन दो numbers को compare करने के बाद only flags are affected. Right? Same way for CPI also, it is same thing. Now let's check. Write an instruction to load the accumulator with the data byte 64H. A में आपके पास है 64H आ गए, ये इन्होंने मेमोरी में ले रखा है, तो A में 64H है। And verify whether the data byte in memory location 2050H. तो H और L में आप क्या वैल्यू, बिकॉज आपने इस लोकेशन से डाटा पिक करना है, तो HL में आपने ये 2050 मेमोरी लोकेशन दे दिया। यहाँ से ये इस पे पॉइंट करेगा 2050 पे, और इधर जो भी डाटा है, वट एवर डाटा इज देयर, इन दोनों को वो माइनस करेगा। तो ये एक्यूमुलेटर का डाटा आ गया, ये एम का डाटा आ गया, दोनों को माइनस किया और उसके अकॉर्डिंग इट इज गोइंग टू सेट दी फ्लैग्स। तो आपके पास इंस्ट्रक्शंस क्या आ जाएंगी, आपने मेमोरी से डाटा पिक करना है तो HL आ जाएगा, LXI H पॉइंट करो 2050 पे। ए में आपने डाटा इमीडिएटली पुट कर दिया, मूव इमीडिएट टू A64H, तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन होगी। देन आप सिंपली लिखोगे CMPM। तो जब आपने CMPM लिखा, इसने ये ऑपरेशन किया, दोनों को माइनस किया, एंड आफ्टर दैट यू हैव रिटन and verify whether the data byte in memory location is equal to the accumulator. If both the data bytes are equal, jump to location out 1. अगर कहते हैं दोनों बाइट्स इक्वल है तो आपने out 1 पे जाना। So in that case simply आप क्या लिखोगे, jump if zero flag is set to out 1. Out 1 कोई लोकेशन है, so it is going to jump to that. So this is how it is going to, we are going to do. तो एक्चुअल में क्या किया इन्होंने, 64H और यहाँ पे जो भी डाटा पड़ा था, डाटा सपोज इन्होंने क्या लिया है, एनी एग्जांपल, लेट्स अज्यूम द डाटा बाइट इन मेमोरी लोकेशन इज 9AH। अब वो कहते हैं कि ये 9AH है, तो 64H
-9AH करना। तो -9A को एक्चुअल में वो क्या करेगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके इन दोनों को ऐड कर देगा। तो ये 64H लिख लिया, 0 1 1 0 एंड 0 1 0 0। 9AH का 2's कॉम्प्लीमेंट लिया। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लोगे, 9 का लिख लिया 9A, it is 1 0 0 1, A will be 1 0 1 0, पहले उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लो, it will be 0 1 1 0 0 1 0, सिंपली कॉम्प्लीमेंट कर दो, 0 की जगह 1 1 की जगह 0। टूज कॉम्प्लीमेंट लेना, उसमें ऐड कर दो 1 प्लस 1। रिजल्ट क्या आया, 1 + 1 is 0 with the carry of 1, then 1, then 0, this is same 0 1 1 0 0 1 1 0 and 0 1 1 0। ये आपका आ गया, ये आ गया 0 1 1 0 0 1 1 0। ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो गए, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये आ गया आपका, एंड अकॉर्डिंगली आपके जो हैं फ्लैग्स दे आर गोइंग टू मर्ज। सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली डू दी सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें आपने क्या करना है, यूज ऑफ कंपेयर इंस्ट्रक्शन टू इंडिकेट द एंड ऑफ डाटा स्ट्रिंग। सो दिस इज द स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा काउंटर्स एंड टाइम टेबल। एनी डाउट्स इन दिस टुडे व्हाटएवर? I hope it is clear to all. Yes, ma'am. Okay, thank you all. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.